میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیکودیمس، اور یہ کردار ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل میں، اور ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ کہیے آمین۔ آج ہم اسی کردار کے بارے میں سیکھیں گے۔ نام ہے نیکودیمس۔ وہ یہودی تھا، بلکہ یہودیوں کا سردار تھا، اور ان کا ایک بڑا مذہبی فرقہ ہے فریسی، اس فرقے کا تھا۔ موسیٰ کی شریعت سے پورا واقف تھا، اور یہودیوں کی ایک شرعی عدالت تھی، جیسے پاکستان میں بھی اسلامی شرعی عدالت ہے، تو یہودیوں کی بھی مذہبی ایک عدالت تھی، اس کا یہ جج تھا، اور اس عدالت کا نام تھا، یا اس ادارے کا نام تھا سنہیڈرن۔ یہ سنہیڈرن کا ممبر تھا، یعنی جن کا بڑی چیز یہودیوں میں، اور ایک بڑا عالم، لوگ جھک کے سلام کرتے تھے، اور اس کے نام کی جو معنی ہے لوگوں کی فتح۔ نیکودیمس کا ذکر صرف یوحنا کی انجیل میں آیا ہے 3 دفعہ، 30ویں باب میں، 7ویں باب میں اور 19ویں باب میں۔ آج پیغام جو ہے وہ انہی تین واقعات پہ ہوگا۔ 30ویں باب کی پہلی آیت سے 21ویں آیت تک پہلی دفعہ ذکر ہے، دوسری دفعہ 7ویں باب میں، تیسری دفعہ 19ویں باب میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی دفعہ جب نیکودیمس کا نام آیا ہے، اور یہ ہے یوحنا کی انجیل کے 30ویں باب کی پہلی آیت سے 21ویں آیت تک، اور اس میں سے ہم پڑھیں گے ابھی دوسری آیت۔ یہاں لکھا ہے، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اب سنیے غور سے، یہ شخص رات کے وقت آیا یسوع کے پاس، اور آ کر یسوع کو کہا، اے ربی۔ یہودیوں میں جو سب سے بڑا مذہبی لیڈر ہوتا تھا، جو ان کا ٹیچر ہوتا تھا مذہبی شریعت کا معلم، اسے ربی کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب اس نے کہا میں تو ربی ہوں، لیکن اس نے یسوع کو ربی کہا۔ یہ بزرگ آدمی ہے نیکودیمس، اور یسوع مسیح 30 سال کا لڑکا ہے، 30-35 سال تقریباً، سوری 30 یا 33 سال کے درمیان۔ تو ایک لڑکے کو ایک بزرگ آدمی جو خود بھی ربی ہے آ کے کہتا ہے، اے ربی۔ ربی کا مطلب ٹیچر، مذہبی استاد، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر وہ ایک اور بات کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے آیا۔ بڑی زبردست بات ہے، وہ کہتے ہیں تو خدا کی طرف سے آیا ہے، یہودی لیکن مان رہا ہے، کیونکہ باقی یہودی کہتے ہیں کہ ابھی آیا ہی نہیں یسوع، وہ آئے گا، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ جو معجزے آپ دکھاتے ہیں کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ بڑی اچھی بات ہے کہ تو آپ کے خیال میں یسوع کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تھینک یو نیکودیمس؟ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح کو، خدا کو اپنے نام کی تعریف اور حمد و ثنا ان لوگوں سے سننا پسند نہیں ہے جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جتنی مرضی وہ گیت گانے، کلام پڑھنے، کلام سنانے، نیکیاں کرنے، جو مرضی کرنے، خداوند کو پسند ہی نہیں ہے۔ جس زبور 50 میں لکھا ہے، خدا شریف سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ تو اپنے زبان پر میرے پاک نام کو کیوں لاتا ہے؟ تجھے شریعت سے عداوت ہے، اور مجھے اتنا مراجعہ کا بیان کر رہا ہے۔ خدا ان کو ایسے گیتوں سے بھی نفرت، ایسے گیت گانے والوں سے بھی نفرت ہے۔ گیت گانے والوں سے، گیت سے نہیں، جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، اور گیت گاتے ہیں، ان کے گیتوں سے لوگوں کو برکت ملتی ہوگی لیکن اس کو نہیں مل رہی، خدا ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو رات کے وقت آیا، اب میں بات کروں گا رات کی۔
رات کے وقت 2-3 باتیں ہیں جو میں کروں گا رات کے بارے میں. رات کے وقت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کے آیا ہو کہ باقی یہودی دیکھ لیں گے, وہ کیا کہیں گے, اتنا بڑا استاد اور ایک لڑکے کو ملنے آیا ہے, اور وہ بھی لڑکا جو یروشلم کا نہیں ہے, ناصرت کا ایک بڑائی کا بیٹا, اس کو ملنے آیا ہے, چھپ کے آیا. ایک خیال تو یہ تھا عزت کی خاطر, کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت بڑا شخص تھا نیقودیمس. دوسری بات, شاید یہ بات نہ ہو وہ ویسے ہی رات کے وقت آیا ہو کہ رات کا وقت اچھا ہے, تنہائی ہوگی اور خوب کھل کے باتیں ہوں گی, پرائیویسی میں اچھی رازداری کی باتیں کریں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کیونکہ یسوع مسیح کو تو لوگ سونے بھی نہیں دیتے تھے, صبح سے شام تک یسوع کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا. شاید اس نے یہ سوچا ہو اچھا ٹائم ہے رات کو بات کریں گے, مطلب میں نے کہا شاید دونوں میں سے. ایک اور بات ہے, رات کا وقت عموماً بائبل میں خاص طور سے یونا کی جیل میں تاریکی اور رات کو عام طور سے گناہ سے مشابہت دی جاتی ہے. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ گناہ میں آیا, رات کو آیا, یعنی تاریکی میں آیا, گناہ میں آیا, کیونکہ تاریکی جو ہے یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے. میں نے تینوں کے لیے شاید کہا ہے, شاید چھپ چھپا کے, شاید تاکہ اچھا ٹائم ملے, کھل کے باتیں ہوں, شاید گناہ میں. برحق جو تیسرا ہے اس میں میں زیادہ اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ تعریف تو وہ کر رہا ہے, ہم تو کر رہے ہیں, لیکن گناہ میں ہے. تو نیقودیمس نے یسوع سے کہا اے ربی, اور میں نے کہا کہ ربی کا مطلب ہے اے استاد, اے والد. اور پھر یسوع نے اس کو کیا جواب دیا؟ یونا تیسرا باب تیسری آیت, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. خداوند یسوع مسیح جب بھی جواب دیتا تھا وہ صحیح جواب دیتا تھا. یسوع نے ایسا جواب دیا جو کہ انوکھا جواب ہے. سنیے غور سے, کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے میٹرک بھی نہ کی ہو اور وہ کالج میں پڑھ رہا ہو 11ویں جماعت میں؟ مجھے بتائیے, بولے کیوں؟ کیونکہ کالج میں جانے کی شرط کیا ہے؟ میٹرک کی سند. جادی آگے چلے گئے تو بات پتہ چل جاتا ہے, لیکن برحال میٹرک کی سند. تو میں یوں کہوں گا, جب تک کوئی میٹرک پاس نہ کرے وہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتا, اس کو ایف ایس سی میں 8ویں میں داخلہ نہیں مل سکتا. ٹھیک. دوسری بات, جب تک کوئی شخص بڑا نہ ہو, کپڑے نہ پہنے ہوں, جو انڈر گارمنٹس ہے وہ بھی نہ پہنے ہوں, وہ باہر نہیں جا سکتا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہلو بھیا بولیے, ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کا لوگ شرطیں ہیں, جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں ہوگا. جب تک جہاز کی ٹکٹ نہیں ہے, جب تک پاسپورٹ نہیں ہے, جب تک ویزا نہیں ہے, آپ جہاز میں انٹر ہو ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے ایسی بات کی ہے کہ جب تک کوئی دوبارہ پیدا نہ ہو, نئے سرے سے پیدا نہ ہو, وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اب آپ کو مثالوں سے سمجھ آ گئی. اب نیقودیمس کا جواب سننے وہ کیا ہے, بڑا عقلی سا جواب اس نے دیا ہے انسانی عقل کے مطابق, اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے پوری انجیل میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات ہی نہیں ہوئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. وہ اپنی عقل کی بات کر رہا ہے اور کیا جواب دیتا ہے یسوع کو. تیسرا بات چوتھی آئی, نیقودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پھر پیدا ہوتا ہے, لیکن نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی دوبارہ ماں کے پیٹ میں داخل ہوگا پھر پیدا ہوگا؟ یسوع نے کہا ایڈا بڑا استاد ہو گئے تھے, اتنا ہی نہیں پتا, اور اس کو پتا بھی نہیں تھا. لیکن یسوع نے کہا کیا تو یہودیوں کا استاد ہو کر بھی نہیں جانتا؟ اور پھر یسوع نے وضاحت کی اس کی, تو اس نے تو اپنی عقل کے مطابق ٹھیک جواب دیا. اب آپ غور سے سنیے. اور لوگ کہتے ہیں جی ہم نیکیاں کر رہے ہیں, ہم بچوں کی فیس دیتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, ہم یتیموں کی مدد کرتے ہیں, ہم یتیموں کا سہارا بنتے ہیں, ہم نیکیاں کرتے ہیں,
हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, हमने स्कूल खोले हैं, हमने मुफ्त कॉलोनियां बना के दी हैं, हमने गरीबों को मुफ्त घर दिए हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं, नेकियां हैं, लेकिन ये आसमान पर जाने की शर्त नहीं है। आसमान पर जाने की एक ही शर्त है, नवे सिरे जमाना। इसलिए याद रखें, आप लोग जो पैदा हो चुके हैं, अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो पैदा नहीं हुए। आप आसमान की बात को में जा ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जी मैंने बपतिस्मा लिया बचपन में, नहीं जा सकते, ये शर्त है ही नहीं। कोई कहे जी मैंने मुस्तकीम हुआ हूं, मैंने इस्तेकाम मेरा हुआ है, नहीं जा सकते आसमान पे, ये शर्त तो है ही नहीं है। कोई कहता है मैं चलते देता हूं, नहीं जा सकते। एक बंदा यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा खुदावंद यीशु, ये यीशु ने साथ दिया है कि मैं चंदा भी देता हूं, रोजे भी रखता हूं। तो दूसरा शख्स आया, उसने कहा खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। जिस शख्स ने अपनी नेकियां जतवाई, अपना मजहबी रसूमात को जताया, और उसने कहा मैं कुछ हूं, वो बगैर निजात के वापस चला गया। और जिसने कहा खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, और निजात पाके चला गया। बात यह है, ये नेकियां, ये बपतिस्मे, ये मजहबी रसूमात, ये रोजे, जब तक आपने नए सिरे से पैदाइश हासिल नहीं की, जितने मर्जी रख लें, कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा एक है, लोग देख के आपको कहेंगे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा नमाजी, बड़ा परहेजगार है, बड़े रोजे रखता है। शायद आप गालियां ना देते हो, लेकिन इसका क्या मतलब आसमान पे जाएंगे? शायद आप शराब नहीं पीते, क्या आप आसमान पे चले जाएंगे? ये शर्त ही नहीं है कि जो शराब, जब तक कोई शराब नहीं छोड़ेगा आसमान में नहीं जाएगा, ये तो शर्त ही नहीं है। ये तो बात की बातें हैं। जो शर्त है नए सिरे से पैदा होने के। कुछ लोग बड़ा शौक होता है जी ईस्टर को जुलूस निकालना है, गुड फ्राइडे को जुलूस निकालना है, और 24 की रात को जुलूस निकालना है। मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन अगर यही बुनियाद बना ले और कहेंगे इससे मैं आसमान पे चले जाऊंगा, दीज आर नॉट द कंडीशंस, ये शराइत नहीं है। इसलिए याद रखें, आप लोग जो पैदा हो चुके हैं, अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो पैदा नहीं हुए। आप आसमान की बात को में जा ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जी मैंने बपतिस्मा लिया बचपन में, नहीं जा सकते, ये शर्त है ही नहीं। कोई कहे जी मैंने मुस्तकीम हुआ हूं, मैंने इस्तेकाम मेरा हुआ है, नहीं जा सकते आसमान पे, ये शर्त तो है ही नहीं है। कोई कहता है मैं चलते देता हूं, नहीं जा सकते। एक बंदा यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा खुदावंद यीशु, ये यीशु ने साथ दिया है कि मैं चंदा भी देता हूं, रोजे भी रखता हूं। तो दूसरा शख्स आया, उसने कहा खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। जिस शख्स ने अपनी नेकियां जतवाई, अपना मजहबी रसूमात को जताया, और उसने कहा मैं कुछ हूं, वो बगैर निजात के वापस चला गया। और जिसने कहा खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, और निजात पाके चला गया। बात यह है, ये नेकियां, ये बपतिस्मे, ये मजहबी रसूमात, ये रोजे, जब तक आपने नए सिरे से पैदाइश हासिल नहीं की, जितने मर्जी रख लें, कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा एक है, लोग देख के आपको कहेंगे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा नमाजी, बड़ा परहेजगार है, बड़े रोजे रखता है। शायद आप गालियां ना देते हो, लेकिन इसका क्या मतलब आसमान पे जाएंगे? शायद आप शराब नहीं पीते, क्या आप आसमान पे चले जाएंगे? ये शर्त ही नहीं है कि जो शराब, जब तक कोई शराब नहीं छोड़ेगा आसमान में नहीं जाएगा, ये तो शर्त ही नहीं है। ये तो बात की बातें हैं। जो शर्त है नए सिरे से पैदा होने के। कुछ लोग बड़ा शौक होता है जी ईस्टर को जुलूस निकालना है, गुड फ्राइडे को जुलूस निकालना है, और 24 की रात को जुलूस निकालना है। मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन अगर यही बुनियाद बना ले और कहेंगे इससे मैं आसमान पे चले जाऊंगा, दीज आर नॉट द कंडीशंस, ये शराइत नहीं है, तो लोगों का ख्याल गलत है। अगर कोई नेकियां करके आसमान पे चला जाए, मेरी तरफ देखिए, जरा मेरी तरफ देखिए। मैंने बड़ी नेकियां की हैं, मैं नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर फर्ज करें मैं नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, बहुत नेकियां की हैं, बड़े बच्चों को मुफ्त पढ़ाया, बच्चों की बहुत से बच्चों की फीसें दी हैं, बहुत सी, मतलब मैं अपनी बात मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ। और मैं आसमान की बात से जाना चाहूँ तो क्या खुदावंद कहेगा शाबाश तू आ, तेरे लिए दरवाजा खुला है? जी नहीं। पहली शर्त जो असल शर्त है वो पूरी नहीं की, नेकियां बेफायदा। कभी गीत गाया करते थे हम, मेरी नेकी भी किसे कम ना आवे, तेरी नेकी है कुछ और यसु
रखी। तो फिर हमारी नेकियां, बाइबल में लिखा है, यदि खुशियों की इबादत है, these are not the condition, must be रस्में, ये शराइत नहीं है। फिर आप क्या कहेंगे जी नेकियां ना करिए? भाई जी नेकियां करें, नेकी जरूर करें, लेकिन वो किसी खाते में नहीं है। हाँ, निजात पाने की बात करेंगे तो वो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसका इनाम मिलेगा, आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपको उसका इनाम मिलेगा, आपका खुदा की नजर में अहमियत होगी निजात के बाद, नई पैदाइश पाने के बाद। अब नई पैदाइश के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले मैं दो तरह की पैदाइश बताऊंगा। दो तरह की पैदाइश। पहली पैदाइश है जिसको हम कहते हैं जिस्मानी पैदाइश, फिजिकल बर्थ। और आदम और हवा से आपको पता है, लिखा है कि आदम और हवा से काइन पैदा हुआ, हाबिल पैदा हुआ, और फिर आगे जाके लिखा है उसके और भी बहुत से बेटे बेटियां पैदा हुए। ये जिस्मानी पैदाइश है जो एक खामन और बीवी के मिलाप से होती है। अगर कोई निकाह के बगैर बाप बन जाता है या मां बन जाती है, खुदा की नजर में ये हराम का भी है। तो जिस्मानी पैदाइश ये फितरी तरीका है खुदा का कि औलाद खुदा की तरफ से विरासत से मिलती है, ये जिस्मानी पैदाइश है। लेकिन ऐसा जिस्मानी पैदाइश पाने वाला बाद में मर जाता है, अगले दिन मर जाए, शायद मां की गोद में क्या नाम है राम में मर जाए, 6 महीने का होकर मर जाए, साल का हो जाए, 70-80 साल 90 साल का होकर मरे, आखिर मरना ही है। किसने मरना है? जो इंसानी तरीके से पैदा हुआ है, मरना है। दूसरी पैदाइश, मैंने आपसे कहा कि नई पैदाइश की बात बाद में करूंगा। दो पैदाइशें, पहली पैदाइश एडम भाई आपको पता चल गई कौन सी है? बोलिए, अभी जो बयान किया है, जिस्मानी पैदाइश, फितरी, आदम हव्वा की तरह। अब और इसके बाद मैंने कहा कि ये लोग जितने हैं ये मरेंगे, इब्रानियों 9:27 में ये लिखा है। अब दूसरी पैदाइश, ये आप हैरान होंगे, आप हैरान होंगे इस पैदाइश से। होना हैरान, जो शैतान से पैदा हुए हैं, जो इब्लीस से पैदा हुए हैं। मैं सादिक मसीह का बेटा हूं क्योंकि मैं सादिक मसीह से, सादिक मसीह के घर में पैदा हुआ। लेकिन एक ऐसी पैदाइश है जिसको मैंने नाम दिया है सैटानिक बर्थ, शैतान की तरफ से पैदाइश। ये कैसी है? यूहन्ना 8:44। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। आदम हव्वा ने सही पैदाइश पाई, बाद में वो शैतानी पैदाइश हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा किया, नाफरमानी की। और ये जो दूसरी पैदाइश है जो शैतान से है, जो गुनहगार गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, उनके लिए बता दूं, ये एक दफा पैदा होते हैं मां से, मां बाप से, दूसरी दफा पैदा होते हैं शैतान से, ये 2 दफा मरेंगे, 2 बार मरेंगे। पहले कब? जब वो आई आते, जब आनी होगी, आ जाएगी मौत, किसी को भी आ सकती है, डेथ हो गई किसी वजह से, टीबी, दमा, कैंसर, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। एक तो वो मौत है जो ये मरेगी, जो शैतान से पैदा हुए। एक और मौत उन्हें आएगी, मरने के बाद फिर जब तक अदालत के सामने खड़े होंगे, खुदावंद यीशु से कहेगा, ऐ मरा हो, उस आग में चले जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं, जो शैतान और बदरों के लिए तैयार की गई है, उसमें चले जाओ। तो ये दूसरी मौत है। और प्रकाशों में लिखा है जो लोग नए सिरे से पैदा होते हैं उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया। नई पैदाइश जिसका जिक्र आगे जाके करूंगा, वो सिर्फ एक दफा मरेंगे, जिस्मानी मौत, दूसरी मौत उनको नहीं आएगी। तो दो तरह की मैंने आपको पैदाइशें बता दी। अब जो असली पैदाइश जिस पे मेरा कलाम है, जी आज का मेरा मौजू क्या है? निकोदेमुस की जिंदगी से मेरा मौजू क्या है? न्यू बर्थ, नई पैदाइश, नए सिरे से पैदा होना। तो जब कोई शख्स ये कदम उठाता है नए सिरे से पैदा होने का, तो खुदा के घर में पैदा होता है और खुदा उसका बाप बन जाता है। जो शैतान की औलाद है, जो शैतान से पैदा हुए हैं, जो इब्लीस से है, जो सांप की नस्ल है, जो शैतान की नस्ल है,
क्योंकि उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। अब नई पैदाइश पा कैसे सकते हैं? हाँ जी, नई पैदाइश पा कैसे सकते हैं? अगर आप नए सिरे से पैदा होंगे तो आपकी दो डेट ऑफ बर्थ होंगी। एक वो जो जिस्मानी माँ बाप से पैदा हुए वो डेट ऑफ बर्थ, और एक और डेट ऑफ बर्थ होगी जब आप नए सिरे से पैदा हुए। अब सुनिए गौर से, 31 अगस्त 1969, 19 साल का एक लड़का, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। तो क्या हुआ, मुझे खुदा के खातों ने कहा नए सिरे से जब तक कोई पैदा नहीं होगा आसमान की बादशाह को नहीं जाएगा, पहले नए सिरे से पैदा हो। मैंने 31 अगस्त 1969 को 19 साल का उस वक्त लड़का था, मैंने कहा खुदा यीशु मसीह मुझे नई पैदाइश दे, मुझे नए सिरे से पैदा कर। मैं तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ, मैं तुझे अपना निजात देना कबूल करता हूँ, और मैं नए सिरे से पैदा हो गया। मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है। भाइयों, नई पैदाइश तो कैसे हासिल करते हैं, उसका बाइबल तरीका क्या है, इसको वो नहीं जानता था। निकोदेमस, यीशु मसीह ने पहले बाब की 12 आयत में इसका जिक्र कर दिया हुआ था ऑलरेडी। देखिए बड़े यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12 में है, क्या लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल किया, उसने यानी यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल किया और कहा है खुदा यीशु मसीह मैं शख्सी तौर से आज फलाने डेट को इतने बजे तुझे अपना निजात देना कबूल करता हूं, वो खुदा के बेटे बन गए। बोले हालेलुया। और वो उनकी नई डेट ऑफ बर्थ है, फिर शैतान उनका बाप नहीं है, फिर खुदा उनका बाप है। बोले हालेलुया। कई लोग कहते खुदा सुनता ही नहीं साड़ी, भाई सुनेगी तुसी दुआई अपने बाप को करने बाज के लिए ऐ बाप तो बहुत सुननी, तो बाप में दूसरे ने जो शैतान है, जब हम तौबा कर लेते हैं, निजात पा लेते हैं, यीशु मसीह को शख्सी निजात देना कबूल करके, तो आप जब करते हैं तो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। तो नए सिरे से पैदा हो जाते, बोले दोबारा, तो नए सिरे से, मैं नए सिरे से पैदा हुआ 31 अगस्त 1969 को। आपको भी अगर याद है तो अच्छा है, अगर नहीं याद तो महीना तो याद होगा, अगर महीना भी नहीं याद, ये तो याद है कि नई पैदाइश पाई, आपने तौबा की, निजात पाई, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है कि याद रखते रहे, नहीं याद हो कोई बात, लेकिन कितनों को बेशक डेट याद नहीं है, जिसको ये पता है कि वो नए सिरे से पैदा हुआ है खुदा घर में, वो अपना हाथ उठा कर वाह तुसी इको बारी मरो, शायद भी ना मरो। मेरे पास देखो था, जो लोग नए सिरे से पैदा हुए हैं एक दफा मरेंगे, शायद एक दफा भी ना मरे। ये क्या मतलब है? अगर आज यीशु मसीह आसमान से आ जाए कलीसिया को लेने के लिए, पहले मुर्दे जी उठेंगे और जो नए सिरे से पैदा हुए हैं उनके से मिलकर आसमान पर उठा दिए जाएंगे और आप मौत का मजा ही चुकेंगे। तो शायद एक मौत भी ना आए, लेकिन अगर आ भी जाए तो उसका तो आपको कोई नुकसान ही नहीं है। ये मौत ऐसा ही है जैसे आप सो रहे हैं, फिर आप जी उठेंगे, घबराना नहीं। आ गई मौत तो ठीक है, नहीं आई तो वैसे ही चले जाए मरने के बगैर। अगर मर भी गए तो जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी, बोल रहे तो भी हमेशा की जिंदगी में जाएगा। ओके, फिर खुदा के घर में जन्म लेने वाला खुदा के घर का बंदा बन जाता है। बोले हालेलुया। तो जो एक दफा पैदा होते हैं वो 2 दफा मरेंगे, और जो 2 दफा पैदा होते हैं वो सिर्फ 1 दफा मरेंगे, और शायद वो भी ना मरे। तालियां बजा दें यीशु मसीह के। निकोदेमुस बड़ा अच्छा है यार, वो आता तो ये बातें होनी थी। अच्छा मुझे बताएं बाइबल की सबसे मशहूर आयत कौन सी है? सबको पता है, लेकिन जब मैं कहूंगा ना इसके बारे में कोई और सवाल करूंगा किसी को नहीं पता होगा। बाइबल से की सबसे मशहूर आयत यूहन्ना 3:16 है। कट बोले क्या है? खुदा ने ये सबसे मशहूर आयत है, लेकिन ये यीशु मसीह ने कब कही, किसको कही, आपको शायद नहीं पता। निकोदेमुस ही तो की थी, यही निकोदेमुस 30वें बाब की पहली आयत से 21वें आयत तक यीशु की गुफ्तगू है निकोदेमुस से।
तो 16वीं आयत निकोदेमुस से की थी और कहा था कि नई पैदाइश का मतलब है खुदा ने जो अपना बेटा भेजा है, उसने जो कफारा दिया है, जो निजात के लिए उसने लहू बहाया है, उसका जिस्म तोड़ा गया है, उसको कबूल करे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो उस पर ईमान लाएगा वो ईमान लाने के बाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये नई पैदाइश का फल है। जब आप तौबा करते हैं आसमान पर हमेशा तक खुश रहेंगे और दूसरी मौत का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होगा। मरकुस 16:16 पढ़िए। मरकुस 16:16 1 2 3 जो पढ़ सकते हैं सामने लेके इकट्ठे 1 2 3। ईमान दो तरह का है। एक वो ईमान है जो निकोदेमुस का था, ऐ उस्ताद, ये भी उस्ताद मान रहा है। दूसरी बात, तू खुदा की तरफ से आया है, उसका ईमान था। जो मुझे तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता, उसका ईमान था। और तेरे साथ खुदा है, ये उसका ईमान था। लेकिन ये ईमान काफी नहीं था। बुजुर्ग ईमान लाती हैं कि खुदा एक है। क्या आसमान पे जाएंगी वो? बाइबल में लिखा है शयातीन भी ईमान लाते हैं और थरथराते हैं, क्या आसमान पे जाएंगे? जिन लोगों का ये ईमान है यीशु निजात देने वाला है, उसने दुख से, उसने शरीर का दुख सहा, वो मर गया, जिनका आसमान पे चला गया। ये ईमान जो बाप दादा से चलता आ रहा है, ये नई पैदाइश नहीं देता। नई पैदाइश के लिए आपको अपनी मेमोरी को घुमाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यीशु, जब मैं मुद्दतों से सुनता आया हूँ, आज मैं तुझे दिल से अपना शख्सी निजात देना कबूल करता हूँ। मेरे दिल में आ, मेरे गुनाह माफ कर, मैं बपतिस्मा भी लूंगा जो तेरे कलाम में लिखा है। तो प्लीज आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, सर को झुकाएं। बिल्कुल बड़ा संजीदा वक्त है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा से यही चलता आया है, इसका कोई फायदा नहीं। एक दिन आपको ये सच्चे दिल से कहना है, ऐ यीशु मैं गुनहगार, ऐ यीशु मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर, मैं तुझे अपना गुनाह से निजात दहिंदा तस्लीम करता हूँ, अपना निजात दहिंदा मानता हूँ। मुझे नई पैदाइश दे, मुझे अपने घर में जन्म दे, मैं नए सिरे से पैदा हो जाऊं। एक दिन ये कहना पड़ेगा, नहीं कि कहा तो ऐसे ही मर गए तो फिर जहन्नम में जाएंगे, मुजरिम ठहराए जाएंगे। आंखें बंद रखें, उनको गुस्ल दिया जाता है। जब आप खुदा के घर में पैदा होते हैं फिर आपको गुस्ल देना है। बाप बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा लेना। क्या लिखा है? जो ईमान लाए, पहले नंबर पे ईमान लाना है खुदा के बेटे पर, उसको निजात दहिंदा कबूल करना है, अपने गुनाहों से माफी मांगनी है, उससे कहना है मेरे मैं तौबा करता हूँ, और उसके बाद और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। अगला हिस्सा ना कुछ लोगों को गलतफहमी होती है। देखिए अगला हिस्सा, पहला हिस्सा क्या है? जो ईमान लाए, हेलो सुनिए, यहाँ देखें, यहाँ देखें। पहला हिस्सा क्या है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। दूसरे हिस्से पर बपतिस्मे का जिक्र ही नहीं है। और जो ईमान ना लाए मुजरिम ठहराया जाएगा। तो क्या कहते हैं? दूसरे कहते हैं दूसरे हिस्से पे आएगी बपतिस्मा। और भाई दूसरे हिस्से में नहीं तो ऊपर का तो है ना। पहला स्टेप ईमान है, दूसरा कदम बपतिस्मा है। पहला कदम क्या है? ईमान, दूसरा बपतिस्मा। तो जिसने पहला ही कदम नहीं उठाया, जो ईमान ही नहीं लाया, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। नए सिरे से पैदा होना है, एक ही तरीका है जो मैंने बताया। अपनी आंखें बंद कीजिए, सर को झुकाएं। बिल्कुल बड़ा संजीदा वक्त है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा से यही चलता आया है, इसका कोई फायदा नहीं। एक दिन आपको ये सच्चे दिल से कहना है, ऐ यीशु मैं गुनहगार, ऐ यीशु मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर, मैं तुझे अपना गुनाह से निजात दहिंदा तस्लीम करता हूँ, अपना निजात दहिंदा मानता हूँ। मुझे नई पैदाइश दे, मुझे अपने घर में जन्म दे, मैं नए सिरे से पैदा हो जाऊं। एक दिन ये कहना पड़ेगा, नहीं कि कहा तो ऐसे ही मर गए
तो फिर जहन्नम में जाएंगे। सुनिए सुनिए, अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुए, यीशु राजा कभी भी आ जाएगा। और अगर यीशु राजा भी नहीं आता, कुछ देर के बाद आता है, खुदा को कबूल नहीं किया तो मौत आ सकती है। और ये बहुत इसका नतीजा खतरनाक है। मैं कलाम की जो दो हिस्से हैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। ये मैंने कहा था कि 3 जगह पे निकोदेमुस का जिक्र है। दूसरा है 7वें बाब में, और सुन लीजिए, मैं उसमें कलाम नहीं सुनाऊंगा, वो सिर्फ बात करूंगा। 7वें बाब की 50 और 51 आयत में निकोदेमुस, मैंने आपको बताया कि मसीही लीडर था, यहूदियों का सरदार था। यीशु मसीह अभी खिदमत में था, अभी कुफारे का वक्त नहीं आया सलीब पर चढ़ने का। यहूदियों ने कहा गिरफ्तार करके ले आओ यीशु को, सिपाही भेजे, और सिपाही जब गए यीशु को गिरफ्तार करने के लिए, यीशु कलाम सुना रहा था, वो वापस चले गए। कहने लगे वो ऐसी बातें करता है जो इंसानों की नहीं है, वो तो इलाही बातें करता है। लिहाजा वो बगैर गिरफ्तार करने के चले गए, और लीडरों ने कहा क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जैसा भी उसको गिरफ्तार किया जाए। तो निकोदेमुस जो लीडर था, इसी दूसरे हिस्से में वो कहता है क्या हमारा कानून ये कहता है कि किसी शख्स को सुने बगैर उसको मुजरिम ठहराए? सुना उसको है नहीं, उसकी बातचीत सुनी, उसको वैसे मुजरिम ठहरा दिया, आपने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। और उन्होंने क्या कहा, लगता है कि तू भी उसको कबूल कर लिया है, और इसने कर लिया। तीसरा वाक्य जो है वो मत्ती की इंजील के 19वें बाब की 38 से 40 तक है। वो सुन लीजिए क्या है। यीशु मसीह हुआ, और जब दफनाने का वक्त आया, यूसुफ अरमतिया का रहने वाला था, वो निकोदेमुस के साथ मिलकर, क्योंकि ये रहनुमा था, लीडर था, मजहबी ऑफिसर था, इसके साथ उसकी पत्नी भी थी, और शायद उसको पता भी होगी ये भी अंदर से यीशु मसीह का शागिर्द है। उसको लेकर बादशाह के पास गए और कहने लगे इसकी लाश हमें दे दी जाए, और लाश मिल गई। और फिर अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, उसने अपने लिए कब्र खुदवाई थी कि जब मैं मरूंगा मुझे उसमें दफन किया जाए, उसमें दफन किया जाए। और निकोदेमुस ने क्या किया, 50 सेर, तकरीबन 1.25 मन खालिस मुर और ऊद मिला हुआ लेकर आया, ताकि यीशु मसीह की लाश के ऊपर लगाया जाए। उनकी रस्म के मुताबिक वो वैसे थोड़ा छिड़कते होंगे यहूदियों में, थोड़ा बहुत तेल लगाते होंगे, इसमें मनों के हिसाब से दे रहा। क्या बात है, आपसे कहना चाहता हूँ, उसने यीशु की यादगारी में ये किया। हमने यादगारी में अभी क्या किया है, बपतिस्मा दिया है। अगर नए सिरे से पैदा हुए हैं, आप बपतिस्मा लें, और बपतिस्मा भी ले तो पाक में भी शामिल हो। पाक में भी शामिल होने का हुक्म नहीं है नए सिरे से पैदा होने के बगैर। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको